السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 14ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ جو بھی باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور ایک دوسری صورت ہے سورۃ النحل۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روز قیامت کا منظر پیش کیا کہ قیامت کے روز کافر قدم قدم پر، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر افسوس کریں گے، پچھتائیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ہونے کی، مسلمان بننے کی آرزو کریں گے قیامت کے روز۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ کب سے؟ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائے۔ موت قریب ہے، موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، اس وقت بھی افسوس کریں گے کاش ہم ایمان لا لیتے۔ قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب ہوں گے، منکر نکیر پوچھیں گے، اس وقت بھی افسوس کریں گے۔ پھر جب قیامت کے روز قبروں سے اٹھا کر حشر کے میدان میں لایا جائے گا، جہنم کو لاتے ہوئے دیکھیں گے، جہنم کے مناظر کو دیکھیں گے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، وہاں پر بھی افسوس کریں۔ پھر اس کے بعد اور آگے کا مرحلہ ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالی موت کو ایک بکرے کی شکل میں لا کر موت کو بھی موت عطا کریں گے، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، اس موقع پر بھی افسوس کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے بجائے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس موقع پر بھی افسوس کریں گے کہ اب ہماری بربادی۔ اور پھر اس کے بعد جہنم میں لے جایا جائے گا تو اس ٹائم پر بھی افسوس کریں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ کیا جی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو افسوس سے کریں گے بہت سارے لوگ آئے ڈرانے والے، ہم کو بتانے والے، لیکن ہم لوگوں نے مانا نہیں، اس وقت بھی افسوس کریں گے۔ پھر دوزخ میں جانے کے بعد دوزخ کے عذابات کو پاتے ہوئے چیخیں گے، چلائیں گے، افسوس کریں گے، وہاں پر بھی جو ہے حسرت کریں گے۔ اور پھر جہنم میں جانے کے بعد کچھ توحید پرست گنہگار ہوں گے، جو توحید والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن چند گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو دوزخ میں چند دنوں کے لیے ڈالا ہوگا۔ جب ان کی دھلوائی ہونے کے بعد ان کو پھر دوبارہ جنت میں اللہ بھیج رہے ہوں گے تو ان لوگوں کو جنت میں جاتے ہوئے پھر دیکھیں گے، افسوس کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ 14ویں پارے کی پہلی آیت میں فرما رہے کہ یہ کافر، یہ مشرک جن کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، شرک پر ہو گیا، قیامت کے روز ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں افسوس ہی افسوس کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کاش ہم لوگ نبیوں کے باتوں پر ایمان نہ لاتے۔ لیکن اللہ فرماتے کہ اس وقت ان کا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی افسوس کرنا ہے، جب تک سانس ہے جان سے خوب آدمی افسوس کر لے، دنیا میں افسوس کر لے کچھ فائدہ ہوگا، دنیا میں آدمی حسرت کر لے کچھ فائدہ ہوگا، دنیا میں آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن وہاں جانے کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بہت سارے نام بیان کیے، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا دن، یعنی آدمی وہاں پچھتائے گا، افسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی آیت کے اندر بتائے ہیں کہ قیامت کے روز قدم قدم پر کافر پچھتائیں گے، لیکن اس کا پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ اب تک کے تقریباً 13 راتوں میں آپ لوگوں نے مختلف قسم کے عذابات کا تذکرہ آپ نے سنا۔ قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، مختلف جو ہے پیغمبروں کے قومیں، جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابات، کبھی چیخ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی آسمانی آفتوں کے ذریعے، کبھی زمین کی آفتوں کے ذریعے، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ پتھریں برسا کر طرح طرح کے جو ہے اللہ تعالیٰ عذابات لائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر عذاب ایک نہیں لاتے ہیں، اللہ ان کو مہلت دیتے سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے۔ ایک وقت مقرر ہوتا ہے عذاب کا، جب تک وہ وقت مقرر نہیں آتا اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو سدھرنے کا موقع دیتے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں آدمی سدھر جائے۔ ہاں جب وہ وقت آ جاتا ہے، جس طرح موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے عذاب کا وقت مقرر پر عذاب آ جائے
तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको टाल नहीं सकती। बस एक ही एक कौम गुजरी है, वो कौम यूनुस। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनके कौम के ऊपर अजाब आता आता बच गया, और उन लोगों ने दुआ की, सच्ची दुआ की, अल्लाह से तौबा मांगा, तो जो अल्लाह ताला ने उस अजाब को दूर कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला कहते कि यकीनन हमने इस कुरान को उतारा। कुरान के बहुत सारे नाम कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने बयान किए। ये कुरान जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुरान, इस कुरान के कई नाम आए हैं। उसमें से एक नाम क्या है? जिक्र। जिक्र आमतौर पर हम क्या समझते हैं? अल्लाह को याद करना। जिक्र के माने याद करने के भी, अल्लाह को याद करने। एक जिक्र के माने नसीहत भी। जिक्र के एक माने क्या है? नसीहत। कुरान पूरा क्या नसीहत है? बार बार हमको कुरान कहता है कि फला काम मत करो, फला काम करो, ऐसा करो, ऐसा। तो पूरा कुरान का नसीहत अल्लाह की तरफ से। वदक्किर फइन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को नसीहत कीजिए, एक ना एक दिन ये नसीहत की बात, ये दीन की बात ईमान वालों को फायदा देगी। तो कुरान का एक नाम अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बताया कि जिक्र। अल्लाह फरमाते कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने ही इस जिक्र को, कुरान को उतारा है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले। आसमानी जो पुरानी किताबें उतारी गई, उतारने के बाद अल्लाह ने लोगों के हवाले कर दिया। अब ये तुम्हारे कंधों पर इसकी जिम्मेदारी, तुम जो है इसकी निगहबानी कर लो, इसकी हिफाजत कर लो। लेकिन कुरान मजीद चूंकि आखिरी आसमानी किताब है, अब इसके बाद कोई नबी रसूल आने वाले नहीं है, और इसी तरह कोई आसमानी किताब भी उतरने वाली नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अपने जिम्मे ली। अल्लाह अकबर। नबी के जमाने में जो कुरान उतरा, 1400 साढ़े 1400 साल का अरसा हो चुका, आज ये कुरान वैसे ही महफूज है जैसे नबी के जमाने में उतरा। आज भी कुरान के छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप मदरसों का दौरा कीजिए, 6-7 साल बच्चे जो हाफिज कुरान रहते हैं। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जो लोग जो है जिसको इतना ज्यादा पढ़ते हो, उसको लोग याद करते हो, आरज़ू करते हैं, लेकिन आरज़ू से नहीं होता है। यह कुरान का करिश्मा है, कुरान का एजाज है, मोजिजा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने सीनों में कुरान को जो महफूज कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान को हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया, वलक़द जअलना फिस समाइ बुरूजा व हफ़िज़नाहा बुरूजा व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स समअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन। अल्लाह फरमाते कि आसमानों पर अल्लाह ने बुरूज बनाए हैं। बुरूज क्या है? सैयारे, सैटेलाइट्स, सैयारचे, ये मून्स जिसको कहते हैं, ये सैयारे, ये सैयारचे, ये सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। और अल्लाह बताते हैं कि ये देखने वालों के लिए जीनत है। कभी आसमान पर आप अंधेरे रात में सब उठाकर देखे, रात के 12-1 बजे कितना हसीन मंजर होता है। आदमी सितारों को ढूंढता जाए, एक पर एक सितारे इंसान को नजर आते हैं, उसमें सैयारे भी, सैयारचे भी। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, ये सितारे, सैयारचे जो अल्लाह ने बुरूज बनाए, ऐसे नहीं है, इनको जो है अल्लाह ने शैतानों से हिफाजत करने के लिए, आसमानों की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने बनाए। इल्ला मन इस्तरक़स समअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन। होता क्या है कि आसमानों में गैब के फैसले होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नूरानी मखलूक जो फरिश्ते हैं, उनके दरमियान कुछ फैसले करते हैं, उनको कुछ बातें बताते हैं। ये दुनिया से बुरे शयातीन, ये जिन्नात जो है, उन बातों को उचकने के लिए, उन बातों को चोरी करने के लिए आसमानों की जो है, आसमानों की तरफ सफर करते हैं। अब क्या होता है कि वो जो फरिश्ते जो बातें लेते हैं, ऊपर का फरिश्ता नीचे भेजता, फिर नीचे वाला अपने नीचे वाले फरिश्ते को, एक के बाद जो नीचे जो बात पहुंचती है, तो ये शयातीन जाकर जो उन बातों को चोरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो शयातीन आते हैं, तो ये जो अल्लाह ने शिहाब बनाए, ये सितारे, सैयारचे बनाए, उनके जरिए उन पर हमला किया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है। अब ये एक आध बातें ऐसी होती है कि कभी जो शैतान क्या करता है कि वो सितारा आकर लगने से पहले वो अपनी बात को जो चोरी किया होता है, अपने वाले नीचे वाले शैतान को पास कर देता है। कभी ऐसा होता है, या कभी ऐसा होता है आमतौर पर कि उस बात जो है आगे वाले को पहुंचाने से पहले वो सितारा आकर, वो शिहाब आकर उसको खत्म कर देता है, झुलसा के रख देता है। अब वो एक दो बातें, एक आध बातें जो छूट कर नीचे आ जाती है, फिर नीचे वाला फिर अपने नीचे वाले, वो होते होते क्या होता है, नीचे आने के बाद जमीन पर जो काहिन किस्म के, जादूगर किस्म के इंसान होते, जो अपने कब्जे के अंदर जिन्नात को लिए होते हैं, शयातीन को लिए होते हैं, उनको आकर वो बातें बताते हैं, और उसके अंदर वो सौ जो है झूठ मूठ बोलकर लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को दीवाना बनाते हैं। तो ये सारी बातें जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बताया कि यही जो है जादूगरी होती है। अब उस एक बात को जो अल्लाह ताला ने जो फैसला करने की होती है, वो एक बात के साथ 100 किस्म के झूठ बताकर लोगों को बताते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया कि कहा कि इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व अयून,
उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डर कर जिंदगी जीने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नतें बनाई। और ये जन्नतों में कैसे उनका दाखिला होगा? उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उनसे कहा जाएगा कि सलामती के साथ, अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंसान के पास ढेर सारी नेमतें होने का नहीं, नेमतों के साथ साथ एक और एक बड़ी नेमत है, वो क्या? शांति। आदमी के पास पैसा है, सेहत है, सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं है, माहौल में शांति नहीं है, गांव में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े का माहौल है। हजार नेमतें होने के बावजूद वो नेमतें इंसान के लिए क्या होती है? बदमजा हो जाती है। शांति बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसानों को क़यामत के रोज, मुत्तकियों को जब जन्नत में बुलाया जाएगा तो उदखुलूहा बिसलामिन, सलाम के जरिए, शांति के जरिए उनका वेलकम किया जाएगा। और फिर फरमाते कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दुनिया में हमारे दिलों में जो भी कीना कपट है, इंसान कितना भी अच्छा हो, दिल के किसी ना किसी कोने में दूसरे इंसान के बारे में कुछ ना कुछ कीना होता है। कोई इंसान ये चैलेंज ही नहीं कर सकता कि मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे दिलों में हसद होता है। लेकिन ये जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला जो है ये इंतजाम करेंगे, जन्नत में पहुंचने के बाद उनके दिलों को आईने की तरह साफ कर देंगे, उनके दिलों में रत्ती बराबर भी कोई जो कीना कपट नहीं होगा। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ला यमस्सुहुम फीहा नसब व मा हुम मिनहा बिमुखरजीन, जन्नत में जाने के बाद किसी नेमत को पाकर जन्नत में उकताहट महसूस नहीं होगी। दुनिया के अंदर कितनी भी अच्छी चीज आप उठा लीजिए, चाहे वो कपड़ा हो, खाने पीने की चीजें हो, या हमारी जो सवारियां हो, इंसान आस लगाता, उम्मीदें लगाता, जब वो चीज मिल जाती है 2-4 दिन इस्तेमाल करता फिर पुरानी हो जाए, है कि नहीं? कितनी चीजें। लेकिन ये जन्नत की नेमतें ऐसी कि इंसान इस्तेमाल करता रहता है, यूज करता रहता है, लेकिन वहां की नेमतें उसको जो उकताहट का शिकार नहीं बनाती, आदमी बेजार नहीं होता है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम व अन्ना अदाबी हुवल अदाबुल अलीम। ये बड़े पते की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर मुसलमान को इबादत करते हुए, जीते हुए, इस दुनिया में कोई भी अमल करते हुए अल्लाह के बारे में 2 चीजों का ख्याल रखना। एक तो यह कि अल्लाह जहां माफ करने वाले है, वहीं पर अल्लाह इंसानों की पकड़ धकड़ करने वाली भी। जहां कुरान के अंदर अल्लाह के बारे में आया कि अल्लाह गफूर है, रहीम है, रहमान है, अल्लाह बख्शने वाले, दरगुजर करने वाले, माफ करने वाले, तो वहीं पर अल्लाह की ये सिफत भी बयान की गई है कि अल्लाह पकड़ने वाले भी, अल्लाह अजाब देने वाले भी। ये दोनों चीजों को लेकर हमारी इबादतें होनी चाहिए। अगर कोई सिर्फ अल्लाह की उम्मीद पर जाए, अल्लाह पर जाए, आस लगा के बैठ जाए, अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह माफ कर लेंगे, तो फिर आदमी क्या होगा? गुनाहों में निडर हो जाएगा। हाँ, सब कुछ अल्लाह माफ करने वाले, एक पर एक गुनाह करता जाए। अच्छा, अगर कोई आदमी जो अल्लाह से मायूस होकर बस अल्लाह से डरते बैठ जाएगा, अल्लाह माफ करता है कि नहीं माफ करता, तो फिर अल्लाह ताला से आदमी क्या होता है? मायूस, नाउम्मीद हो जाता है। ये दोनों चीजें, हमारा ईमान, हमारी इबादतें बैनल खौफी वर रजा, उम्मीद के साथ भी होना चाहिए और अल्लाह से डरते हुए भी होना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया अस्हाबुल हिज्र, कौम समूद, जिनकी तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वकानु यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कि ये पहाड़ों को तराश कर घर बनाते, पहाड़ों के पत्थर लाके नहीं, पहाड़ों को तराश कर, पहाड़ को उसको तराश कर, उसको छील कर जो है अपने महल और अपने बंगले बनाते। आज भी ये सऊदी अरब के नॉर्थ में तबुक नामी एक इलाका है, उस रास्ते में जो आज भी इनके जो खंडरात आपको दिखाई देंगे, आज भी मौजूद है। हजारों साल गुजर चुके। आज से 1400 साल पहले जंग तबुक को 9 हिजरी में, इससे पहले जंग तबुक का वाकया आ चुका है। गर्मी के मौसम में अल्लाह के रसूल वहां जो है जंग करने के लिए गए थे 9 हिजरी में, तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इनके खंडरात पर से हुआ, तो अल्लाह के रसूल जो है अपना टवल, अपना रुमाल जो है चेहरे पर बांध लिए और तेजी के साथ जो अपने ऊंट को भगाने लगे। और सहाबा से कहा कि सहाबा यहाँ से गुजर रहे हो, ये मुअज़्ज़ब कौमें हैं जिन पर जो अजाब उतरा है, ऐसे कौमों के इलाके से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह से डरते हुए, रोते हुए यहाँ से निकलो। कुछ सहाबा इकराम जो वहां रुक कर क्या कि वहां का कुछ कुआं या कुछ था, पानी लेकर जो इस्तेमाल करे और फिर जो आटा जो है खाने के लिए आटा गोंदने लगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई जो यहाँ का पानी इस्तेमाल किए अपने बर्तनों में से पानी फेंक दो, और जो आटा गोंदे वो आटा जो अपने ऊंटों को खिलाओ, खुद मत खाओ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहना भी पसंद नहीं किए कि वो कौमें हैं जिनके खंडरात तो है, कौमें तो गुजर गई लेकिन उनकी खंडरात, वहां खंडरात पर जो अल्लाह के रसूल रहना पसंद नहीं किए। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत करीमा के अंदर कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कुरान मजीद अता किया और कुरान मजीद के साथ साथ सबअ मसानी, क्या है? सबअ मसानी, सबा के माने 7,
मसानी के माने दोहराई जाने वाली, रिपीट करने वाली, 7 दोहराई जाने वाली आयत अल्लाह ने अता की। सबे मसानी तुम्हें अता की गई। सबे मसानी से मुराद क्या है? सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा आप पढ़िए, शुरू से आखिर तक आपको 7 आयतें नजर आएंगी, 7 आयतें दिखाई देंगी। और इनको दोहराई जाने वाली 7 आयतें क्यों, बार बार पढ़ी जाने वाली? कुरान मजीद में जो ये सूरत ऐसी सूरत है जिसके बगैर, जिसके तिलावत के बगैर मेरी और आपकी नमाज नहीं होती है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जब भी हम नमाज पढ़ते हैं, हत्ता के जनाजे की नमाज भी क्यों ना हो, नमाज पढ़ते हैं तो सूरतुल फातिहा के हम बराबर तिलावत करते हैं। तो जिसको सबे मसानी कहा, यानी पूरा कुरान अल्लाह का है, लेकिन स्पेशल अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया? सबे मसानी, 7 दोहराई जाने वाली आयतें अल्लाह ने अता की। फिर उसके बाद जो है इसी सूरत में सूरह हिज्र के आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह फरमाते कि ऐ लोगों, तुम्हारी ये इबादतों का सिलसिला तुम्हारे मौत तक होना चाहिए। ये कोई मौसमी चीज नहीं, जैसे मौसम में फल आते मौसम के साथ खत्म हो जाते। ये तुम्हारी इबादतें, ये तुम्हारी नमाजें, ये तुम्हारी सदका और खैरात, ये तुम्हारे अच्छे काम कब तक है? जब तक हमको तसल्ली हो जाए नहीं, हमारी आखिरी सांस तक। हाँ, जब सांस हो गई तो ये फिर हमारी इबादत के लिए छुट्टी है। इबादतों के लिए छुट्टी नहीं है, हमारी मौत ही हमारी इबादत के लिए छुट्टी है। उसके बाद कोई जो इबादत करने वाला नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुन नहल बयान किया है। नहल के माने क्या है? शहद की मक्खी। अरबी जुबान में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं, और शहद की मक्खी के नाम से अल्लाह ने सूरतुन नहल उतारी। जरा सोचे कि शहद की मक्खी में आखिर ऐसी क्या खूबी है कि उस छोटे से पतंगे, उस छोटी सी मक्खी के बारे में अल्लाह ने एक सूरत ही नाजिल फरमाई। 2 चीजें काबिल गौर हैं। पहली चीज क्या है? शहद की मक्खी, जो मेरे और आपके लिए एक लेसन सबक है, वो क्या है? जहद मुसलसल, लगातार मेहनत करना, मुसलसल मेहनत करना, काम होने तक मेहनत करना। एक छोटी सी मक्खी, एक छोटा सा खतरा तैयार करने के लिए, शहद का खतरा, आपको पता है कितने किलोमीटर का सफर तय करती है, कहां कहां जाती है, किन किन फूलों का रस चूसती है, फिर उसको लाकर जो फिर शहद के छत्ते में डालती। और दूसरी चीज जो सीखने की, वो क्या है? डिसिप्लिन, सलीका, काम करने का तरीका। आज की जुबान में अगर कहा जाए, आज की जुबान में अगर इंग्लिश जुबान में कहा जाए तो हार्ड वर्क भी है और स्मार्ट वर्क भी। काम को जो है सक्सेस बनाने के लिए, काम को जो कामयाब बनाने के लिए आदमी के अंदर हार्ड वर्क भी चाहिए, मेहनत, मुसलसल मेहनत भी चाहिए, और फिर जो काम कर रहा, काम का सलीका, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। ये 2 चीजें हमें शहद की मक्खी से हासिल होती है कि मुसलसल मेहनत भी करती है शहद की मक्खी, और तरीके से। जरा छत्ता उठा कर देखिए, क्या उसने इंजीनियरिंग कोर्स किया होगा, उसने क्या मेजरमेंट किया होगा, छत्ता खुद बता देता है कि कितने सलीके के साथ जो वो अपना घर बनाती है, छत्ता बनाती है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताया कि खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा फ़इज़ा हुवा ख़सीम मुबीन। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते कि इंसान को अल्लाह ने हक़ीक़ पानी से, नुत्फ़ा से पैदा किया। फ़इज़ा हुवा ख़सीम मुबीन, जब ये इंसान बड़ा हो जाता तो अल्लाह के बारे में झगड़ालू बन जाता, अल्लाह से बगावत करने लगता, सुबह से शाम तक अल्लाह की दी हुई नेमतें खाता पीता है, पलता है, फिर उसी अल्लाह के साथ जो है गद्दारी करता है, उसी अल्लाह को भुला के जीता है, उसी अल्लाह के साथ शिर्क के काम करना, उसी अल्लाह के साथ में जो है गुस्ताखी करना शुरू कर। यानी अल्लाह ताला ऐसे गुनहगार इंसानों को उनका माजी याद दिलाते हैं कि आज 6 फुट का 5 फुट का इंसान बन गया, इतना कर रहा है, जरा तेरे अपने माजी को याद कर, तेरी हकीकत क्या थी, कहां से तू आया, तेरा वजूद क्या था, और कैसे जो है अल्लाह ताला ने धीरे धीरे कई मरहलों के साथ तुझे पैदा किया, और आज जो फिट बन गया है, ताकतवर बन गया है, तो फिर अल्लाह के सामने गद्दारी कर रहा। अल्लाह जो है इंसान को अपने माजी याद दिला रहे। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे फरमाते कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इस आयत करीमा से पहले तकरीबन 15 आयतों में अल्लाह ने अपने मुख्तलिफ नेमतों का तज़किरा किया। एक नेमत है ये चौपाई, जानवर। ये जानवर, इन जानवरों की चमड़ी से निकलने वाले बाल, इंसान कैसे कैसे लिबास बनाता है, और फिर ये जानवरों का गोश्त इंसान फायदा उठाता है। और पुराने जमाने में लोग जो जानवरों पर सवार होते थे, बैठकर इधर से उधर सवारी करते थे, और इन्हीं जानवरों के ऊपर बड़े बड़े सामान जो लाद कर यहाँ से वहां ले जाते थे। अल्लाह ने जानवरों का तज़किरा किया। फिर उसके बाद बारिश का तज़किरा किया कि मुर्दा जमीन है, यहाँ से वहां तक कई हेक्टर जो है जमीन मर चुकी होती है, बारिश होती है, जमीन लहलहाती है, जमीन हरी भरी हो जाती है, फसलें उगना निकलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अल्लाह ने समंदर का जिक्र किया है कि समंदर के ऊपर कश्तियां, यहाँ से वहां तक भारी भारी कश्तियां, बड़े बड़े बोझ लेकर, सामान लेकर यहाँ से वहां तक ले जाती है, समंदर का पानी उसको ढोता है।
اور जरा अंदर जाओ तुम्हारे लिए मछलियों का तरोताजा गोश्त मिलता है, और जरा अंदर जाओ अल्लाह ताला कीमती मोतिया सीपिया रखे हुए तुम्हारे लिए जेवरात का काम देते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान का जिक्र किया कि ये दिन रात का बदलना, ये मौसमों का बदलना, ये सूरज का निकलना डूबना, ये चांद का घटना बटना, ये सारी चीजों का अल्लाह ताला जिक्र करने के बाद आखिर में फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला, तकरीबन 15-16 आयतों में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे ला तुहसूहा, गिन नहीं पाओगे। और दूसरे मकामात पे अल्लाह ने मिसाल के जरिए फरमाया दुनिया के अंदर जितने दरख्त थे उन दरख्तों को चीर चीर कर छील छील कर उनके पेंसिल बना लो, कलम बना लो, और जितने समंदर का पानी नजर आ उनकी रोशनाई बना लो, इंक बना लो, सारे जो है लिखते लिखते दरख्त घिसे जाएंगे, सारे समंदरों का पानी सूख जाएगा। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, अल्लाह फरमाते कि हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, सारे रसूलों की दावत एक ही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आखिरी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबरों का मैसेज, पैगाम, दावत एक ही थी कि वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना ठहराना। बहुत सारे मुसलमान, पता नहीं कि मुसलमान समझते हैं कि इस्लाम हमारे नबी के जमाने से आया, इस्लाम हमारे नबी के जमाने से आया और इस्लाम के फाउंडर, इस्लाम के बनाने वाले हमारे नबी समझते बहुत सारे मुसलमान। जरा सोचने की बात है, अगर कोई हमको पलटा कर पूछे कि उससे पहले क्या अल्लाह नहीं था, क्या उससे पहले जो है जो पैगंबर गुजरे वो किसकी बात करते थे, किसकी जो है पूजा करते थे, किसकी दावत देते थे, तो हमारे पास क्या जवाब रह जाएगा। मेरे भाइयों, दीन की सही समझ भी हमारे लिए जरूरी है, वरना दुनिया वालों के जवाब जो है हमने सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ये दीन उतना ही पुराना जितना इंसान, बल्कि इंसानों से पहले जिन्नात और जिन्नात से पहले फरिश्ते जो अल्लाह की बात करते थे। ये दीन हमारे नबी के जमाने से, नबी तो बस क्या है 1400 साल पहले आखिरी नबी बनकर आए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मिसाल के जरिए फरमाया कि सारे पैगंबरों की मिसाल आपस में उनका रिश्ता कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम से लेकर मुझ तक सारे पैगंबर आपस में अल्लाह की भाई की तरह, अल्लाह की भाई किसको कहते हैं, बाप एक माए अलग, बाप एक है माए अलग, यानी एक बाप है उसके कई बच्चे, उसके एक बीवी के बच्चे, एक बीवी के बच्चे, तो ये आपस में जो बच्चों के भाई भाई होते हैं, बाप तो एक होता है लेकिन बीवियां अलग होती है, माएँ अलग होती है। तो ये मिसाल देकर हमारे नबी ने फरमाया कि सबका दीन, सारे पैगंबरों का दीन क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम, लेकिन शरीयत अलग थी, शरीयत मूसवी, शरीयत ईसावी, शरीयत मोहम्मदी, जो तौर तरीके रूल्स होते वो अलग थे, पाकी सफाई के तरीके, नमाज का तरीका, लेकिन सबकी दावत ला इलाहा। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी बताया कि वजअलूना लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहू व लहुम मा यश्तहून। अरब के अंदर दो बड़े कबीले थे, एक का नाम है खज़ाआ और एक का नाम है कनाना। बहुत सारे कबीले खानदान वाले थे अरब के लोग। खज़ाआ और कनाना, ये दो कबीले वाले क्या करते थे, ये फरिश्तों के बारे में उनका अकीदा था कि ये अल्लाह की बेटियां, नौज़ुबिल्लाह। ये फरिश्ते हैं ना, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम, इनके बारे में अकीदा रखते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह के लिए औलाद साबित करना खुद अल्लाह की शान में गुस्ताखी। और फिर उसके बाद की आयत में आप देखेंगे कि अरब के लोग जो है खुद के लिए तो बेटियां पसंद नहीं करते थे, खुद के लिए तो बेटियां पसंद नहीं करते, लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो कहते कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटी। एक तो उनकी गलती है कि अल्लाह को जो है उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए औलाद है, और दूसरी बात है कि खुद के लिए मर्द बच्चे है और दूसरा अल्लाह के लिए जो औरत बच्चे साबित करते। फिर उसके बाद आगे के आयत में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा बुश्शिरा अहदुम बिल उन्सा, अरब के बास कबीले ऐसे थे कि उनके यहाँ कोई जो बच्ची पैदा होती, बच्ची पैदा होने की खबर पहुंचती, ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा काला हो जाता, वहुवा कज़ीम, दिल ही दिल में घुटता रहता, यतवारा मिनल कौमी मिन सू, और जब भी बाजार में इधर उधर कौम वालों के पास जाता तो सर झुका के चलता। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तराब, अब उसके पास बेटी पैदा हो तो सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो जिंदगी बचे ऐसे लोगों के ताने सुनकर जिल्लत की जिंदगी गुजार ले, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि बच्ची जो जब खेलने फिरने के, चलने फिरने की उम्र को पहुंच जाए तो रेगिस्तान में ले जाकर उसके सामने गड़ा खोदकर उसको जिंदा दरगोर कर दे, और वो पुकार रही होती कि अब्बा जान मेरे साथ क्या कर रहे। और ये कहने की बात नहीं मेरे भाइयों, कई सहाबा जो ऐसा जो अपने जमाने जाहिलियत में कर चुके हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, सहाबा इकराम जो अपने इस्लाम लाने से पहले, नबी के इस्लाम लाने के बाद नबी के सामने
खुद भी रोते हुए जो इन वाक़ों को जिक्र करते थे और अल्लाह के रसूल को भी रुलाते थे। तो ऐसे जो जहालत का दौर था, फिर उसके बाद जो इस्लाम ने आकर इन तमाम चीज़ों का खातिमा किया। और फिर जो सूरत के पारे के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी बताया, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाते हैं कि ये चौपाए, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़, उसके अंदर से दूध निकलता है। ये दूध अल्लाह कैसे निकालते हैं? जब भैंस हो, गाय जब खुराक खाती है, घास खाती है, वो 4 चीजों में तकसीम होती है। एक क्या है? खून बनता है, और एक दूसरा क्या है? पेशाब, तीसरा क्या है? दूध, और चौथा क्या है? गोबर। ये 4 चीजों में उसका फूड तकसीम होता है। खून जो है रगों में दौड़ता है, और ये दूध जाकर थन में जमा हो जाए, और गोबर गोबर की थैली में जाके जाए, और पेशाब पेशाब की थैली में। अल्लाह फरमाते कि इन तमाम के बीच में से तुम्हारे लिए निथरा हुआ दूध, इसके अंदर ना तो खून का लालपन नजर आता है और ना ही पेशाब गोबर की बो आती है। खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन, ऐसा खालिस दूध जो पीने वाले के लिए मजा, ना उसके अंदर कोई खून की रंगत होती है और न पेशाब की बदबू होती है। बताओ अक्लमंदो, अल्लाह आगे फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून, अक्लमंदों के लिए इन तमाम चीजों में निशानियां हैं। अगर कम से कम इस चीज पर भी इंसान गौर कर ले, जो अल्लाह का इनकार करने वाला है वो जरूर तस्लीम करेगा कि है कोई खालिक जो इस दुनिया को चला रहा है। तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने बयान की गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी बातें कही गई सुनी गई इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।